Hello, my dear students, good morning. Students, one part had been left out. Though we had completed the fourth chapter some days ago, but this is the part which is not included in the main story, okay, of this chapter number 4, Landscape of the Soul. But I think two questions are already given in the textual exercise, so that's why I have decided to give you the explanation and translation of this remaining part of this chapter number 4 also. So this is the video, okay, will contain the explanation regarding the last part, outside part of this chapter number 4, which is also included, okay, in the textual exercises. So bete, getting inside, outsider art, getting inside outsider art means how the artists got their entry into the mainstream of the painting in the world. How the painters in the past days, in the gone days, how the painters found themselves able to get their position to show their paintings, okay, just like the painters who had got their popularity on the basis of their skills. So getting inside outside art means how did the painters who had got no formal training, who had not been taught at schools, at colleges, at universities, okay, found their position as to be the most important part of the field of painting, okay, and how did they get their entry into the mainstream of the field of painting. So this the thing is described here. When French painter Jean Dufet mooted, the word mooted stands for a bete, it's a verb, raised for discussion, raised an idea for discussion, but here the word raised, mooted means raised. When French painter Jean Dufet mooted the concept of art breadth. The word art breadth stands for raw art. The word art breadth stands for here raw art. The art of painting, which has got no training from any other persons. Or you may say the artists who have started making their arts, making their paintings on the basis of their self skills are known as the part of the untrained part of the training. This the untrained part of the field painting, art brut. So when French painter Jean Dufet mooted the concept of art brut in the 1940s, जब वर्ष 1940 के दौरान, वर्ष 1940 जब चल रहा था, तो वर्ष 1940 के दौरान जब किसी एक फ्रांसीसी चित्रकार ने जिसका नाम था जीन ड्यूफेट, जब वर्ष 1940 में किसी फ्रांसीसी पेंटर ने, चित्रकार ने जिसका नाम था जीन ड्यूफेट, जब उसने आर्ट ब्रेट नामक किसी एक चित्रकारिता के इस अवधारणा को, इस कॉन्सेप्ट को, इस विचारधारा को जब उसने लोगों तक पहुंचाया, जब उसने लोगों के बीच उठाया कि भाई आर्ट ब्रिट जो है, जिसको रॉ आर्ट कहते हैं, ये भी तो एक पेंटिंग का हिस्सा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्या ज़रूरी है कि भाई वही सभी लोग पेंटिंग कर सकते हैं जो लोग फॉर्मल ट्रेनिंग लेकर के आते हैं, जिनको स्कूलों में, कॉलेजेज में ट्रेनिंग दी होती है? द आर्ट ऑफ द अनट्रेन्ड विजनरी,
This is known as the art brut. The term art brut refers to the art which was given or which is still given by the untrained visionary painters, visionary people. The art of the untrained visionary. Visionary stands for a dreamy. बेटे ड्रीमी जो होता है, इमेजिनरी जो होता है, जो काल्पनिकता में डूबा रहता है, जो व्यक्ति कुछ आगे अपना विजन बना के रखता है, उसको विजनरी बोला जाता है. ठीक है, दूरदृष्टा जिसको कहा जाता है, फार साइटेड. द आर्ट ऑफ द अनट्रेन्ड विजनरी was of minority interest. In the year of 1940, the French painter Jean Dufaet raised the concept of this a new kind of art of painting, saying it that the painting or the art could be made very beautifully by those who had got no training and who are still untrained, but they had some positive dreams in their mind and they also wanted to become high class painters. So that the French painter Jean Dufaet raised the concept, the idea of that kind of painting in the year of 1940, so that he could get some opinions from the people and he could also popularize his concept across the world. Because in those days, in the year of 1940, okay, one could hardly find such kind of painting which was made by untrained and untrained, not unskilled but untrained painters. Untrained painters means the painters who had not got any training from any institution. तो वर्ष 1940 में बेटे, मैं तीसरी बार बता रहा हूँ, वर्ष 1940 के दौरान या वर्ष 1940 में जब किसी एक फ्रांसीसी चित्रकार जिसका नाम जीन ड्यूफेट था, उस जीन ड्यूफेट ने जब ये देखा कि यार ये चित्रकारिता है, ये विद्यालयों में जिनको ट्रेनिंग दी जाती है वही लोग बनाते हैं, बाकी क्या लोग चित्रकारिता नहीं बना सकते. तो जब उसको इस बात का पता चला तो उसने एक विचारधारा को जन्म दिया. उसने एक विचारधारा को उकसाया ये कह कर के कि भाई जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं प्राप्त की है वो भी तो अपने अच्छे से बहुत ज़्यादा अच्छी एक जो है ना अपनी स्किल का प्रदर्शन कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी चित्रकारिता बना सकते हैं. और उसका नाम था आर्ट ब्रेट. सो द टर्म आर्ट ब्रेट स्टैंड्स फॉर द आर्ट ऑफ पेंटिंग विच is made by those who have got who got no training from some institution, but they were highly skilled and visionary persons. From its almost veiled beginnings, veiled means बेटा partly covered होता है, partly covered, concealed भी कह सकते हैं. From its almost veiled beginnings, outsider art has gradually become the fastest growing area. Outsider art stands for the art of painting, which had become famous because it was directly connected to those who had got training from some institutions, schools, colleges, and this kind of painting has gradually become the fastest growing area of interest. People had started taking this the second field of painting, and only those who had got training from the schools, okay, were invited and were ordered by the people to make their paintings on different kinds of objects, okay, and that had also become contemporary means at the same time in the same year. In that year 1940, when French painter Jean Dufaet noticed that the paintings of the trained people had got popularity and the paintings of the untrained people had not got any space in the field of painting. So he got badly shocked and surprised, and he raised that the concept of the art brut, and that the concept of art brut means raw art, okay, was given by that the French painter.
सो इसमें लास्ट में बेटा ऐसा लिखा हुआ है कि उसी समय, कॉन्टेम्परेरी का मतलब होता है समथिंग दैट ऑकर्स एट द सेम टाइम, समकालीन जिसको कहते हैं हिंदी में, उसी समय उसी वर्ष के दौरान में आउटसाइडर आर्ट जो है, जिसको मतलब ये कहेंगे कि उन सभी पेंटर्स की एक पेंटिंग्स जो जिन पेंटर्स ने कहीं बाहर से ट्रेनिंग ली हुई थी, तो आउटसाइडर आर्ट नामक उस पेंटिंग को उसने बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हुए देखा, उसका बड़ा प्रचलन होता गया, लोग उसमें बड़ा इंटरेस्ट लेते गए। तो उस समय जीन ड्यूफेट ने इस प्रकार से एक नई कॉन्सेप्ट को जन्म दिया था। दिस जीनर, द वर्ड जीनर स्टैंड्स फॉर बेटा a style or category of art. This a newly adopted style of or category of art is described as the art of those who have not right to be artists, as they have received no formal training. Formal training means the training which is given by the well educated persons, teachers, okay, and the masters at the schools and colleges. So this genre is described as the art of those. This is the special quality of painting. This is the special style or category of art or painting is described as the art of those. इस विशेष प्रकार की पेंटिंग को इस विशेष प्रकार की नए सिरे से बनाई गई इस पेंटिंग को उन लोगों की पेंटिंग कहा जाता है एज द आर्ट ऑफ दोज। अक्सर उन लोगों की पेंटिंग, उन लोगों की कला कहा जाता है हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट, जिनको कलाकार बनने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहीं से भी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग, प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया हुआ है। येट सो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इनसाइड, बट दे नो हाउ टू मेक द पेंटिंग्स, हाउ टू शो देयर आर्टिस्टिक स्किल्स, लेकिन वो जानते हैं कि किस प्रकार से उनको अपनी कला दिखानी है। ठीक है, उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, कहीं पर शिक्षा हासिल नहीं की, लेकिन वो जानते हैं किस प्रकार से ट्रेनिंग उन्होंने नहीं ली है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जानते हैं कि उनके अंदर किस प्रकार से एक गुण भरा पड़ा है। येट सो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इनसाइड, बट दे ऑल्सो नो दिस द अनट्रेन्ड okay people and the artists know it very well how to make their paintings very beautifully. Their works are a stimulating contrast. Oh, the paintings of the untrained painters. Untrained means जिनको स्कूल में कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है, जिनको किसी सेंटर में कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, किसी स्टूडियो में ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, उसके लिए अनट्रेन्ड पेंटर्स कहा जाता है। तो कहा कि यहाँ पर इन्होंने ऐसा लिखा है बिल्कुल क्लियरली, देयर वर्क्स आर ए स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रास्ट। स्टिमुलेटिंग मीन्स इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, ओके, टू ए लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफ ऑफरिंग्स। मेन स्ट्रीम स्टैंड्स फॉर ए बेटे आइडियाज, एटीट्यूड और एक्टिविटीज शेयर्ड बाय मोस्ट पीपल एंड रिगार्डेड एज नॉर्मल। ओके, आइडिया, एटीट्यूड्स और एक्टिविटीज shared by most people and regarded as normal. Okay, their works are a stimulating contrast to a lot of mainstream offerings. Offerings stands for the offers, okay, works, okay. So ऐसा इस सेंटेंस के माध्यम से बताया गया है, their works are a stimulating contrast. The paintings made by the untrained painters have also stood themselves in the competition of those all persons paintings who had got the training from some institutions, and they have also been liked by a number of persons, a number of people in the world. जिन लोगों ने कहीं को ट्रेनिंग नहीं ली थी, उन सभी लोगों के हाथों से भी बनाई गई पेंटिंग्स जो थी वो काफ़ी हद तक सक्रिय रही, काफ़ी हद तक पॉपुलरिटी प्राप्त करके रही। अराउंड द टाइम ड्यूफेट वॉज propounding, बेटा propound is a verb, okay, the word propound means put forward for the consideration by others, okay. Around the time Dufett was propounding his concept means was circulating his concept, was putting his concept forward. Around the time means during the year of 1940, that the French painter Jean Dufett was circulating, was putting his ideology forward in India. Okay, also an untutored genius was creating
paradise. In India, an untutored genius was creating paradise. Because following that the French painter Jean Dufault in India, there following the footsteps and the ideology of the French painter Jean Dufault. In India, one artist had also started making or showing his genius, his top quality, his top abilities. Okay, making a paradise. The word paradise translates the place looking like a हेवन, जो स्वर्ग की तरह दिखाई देने वाले किसी स्थान की भांति। बहुत अच्छा एक सुंदर से उसने अपनी चित्रकारिता दिखाई भारत में। अराउंड द टाइम ड्यूफेट वाज प्रोपाउंडिंग हिज कॉन्सेप्ट, वो कहता है कि ठीक वर्ष 1940 के दौरान में जब कोई एक फ्रांसीसी चित्रकार जीन ड्यूफेट अपनी उस विचारधारा को पूरे विश्व में फैला रहा था, उसको आगे बढ़ा रहा था और ये कह रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि किसी पेंटर के लिए कहीं से कोई शिक्षा हासिल करना, बगैर शिक्षा हासिल किए, बगैर ट्रेनिंग हासिल किए भी एक अच्छा पेंटर बन सकता है। इन इंडिया एन अनट्यूटर्ड जीनियस, तो भारत में भी कोई एक बगैर शिक्षा प्राप्त किया हुआ, बगैर किसी से ट्रेनिंग लिया हुआ कोई व्यक्ति था। वॉज क्रिएटिंग पैराडाइज, वह भी कोई बहुत अच्छी पेंटिंग बनाने लग रहा था। ईयर्स अगो द लिटल पैच ऑफ जंगल, काफ़ी वर्षों पहले जो एक जगह बिल्कुल वीरान जंगल की बातें दिखाई दे रही थी। दैट ही बिगेन क्लियरिंग टू मेक हिमसेल्फ ए गार्डन, तो उसने उस पूरे जंगल की तरह से, उस पूरे खाली वन की तरह से दिखाई पड़ने वाले, जंगल की बातें दिखाई देने वाले उस पूरे सुनसान क्षेत्र को उसने अपने हाथों से साफ करना शुरू कर दिया था, एक बगीचा बनाने के लिए, एक गार्डन बनाने के लिए। स्कल्प्ट मीन्स क्रिएटेड विद स्टोन, जिस गार्डन को उसने पत्थर की मदद से बनाया। एंड रिसाइकल्ड मटेरियल इज नोन टू द वर्ल्ड टुडे एज द रॉक गार्डन एट चंडीगढ़, जो चंडीगढ़ शहर के अंदर रॉक गार्डन के नाम से जाना जाता है। उस रॉक गार्डन को उस व्यक्ति ने, भारत के उस जीनियस ने, भारत के उस टॉप क्लास पेंटर ने बना करके दिखाया, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। खुले बिल्कुल प्रदेश के अंदर वन की बातें दिखाई देने, खुले प्रदेश में और ज़्यादा सफाई करा करके, और उस व्यक्ति ने वहाँ पर टूटी फूटी हुई रिसाइकल्ड जितने भी मटेरियल था, टूटी फूटी जितनी भी चीज़ें थी, पत्थर वगैरह थे, उन सभी का इस्तेमाल करके और इस प्रकार से उसने एक बगीचा बना दिया। Its 8-year-old creative director Nek Chand is now hailed as India's biggest contributor to outsider art. Okay, outsider art. अब ये नेक चंद जो है, ये वास्तव में आउटसाइडर आर्ट जो कि एक स्किल्ड और ट्रेंड जो पेंटर्स की आर्ट होती है, उस आर्ट को टक्कर देने वाला भारत का एक सबसे पहला उच्च कोटि का एक इस प्रकार से पेंटर बना है। द 50th issue of Raw Vision, a UK-based magazine pioneer in outsider art publications, features Nek Chand and his rock. The 50th issue का मतलब ये होता है 50वां प्रकाशन, इशू में प्रकाशन के लिए। Of Raw Vision, a UK-based magazine pioneer, UK-based magazine, okay, UK इंग्लैंड के लिए, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड के अंदर अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की हुई कोई एक मैगजीन है। उस मैगजीन ने वर्ष 2005 के अंदर इस प्रकार से और नेकचंद का पूरा एक जिक्र किया उसने अपने प्रकाशन के अंदर। एंड हिज रॉक गार्डन स्कल्पचर, और यहाँ तक कि उसने उसके चंडीगढ़ में बनाए गए रॉक गार्डन को भी बहुत अच्छे से ढंग से उसने दिखाया। वुमेन बाय द वाटरफॉल ऑन इट्स एनिवर्सरी इशूज कवर, वुमेन बाय द वाटरफॉल ऑन इट्स एनिवर्सरी इशूज कवर, और जब उसकी एनिवर्सरी हुई तो उस एनिवर्सरी के ऊपर वुमेन बाय द वाटरफॉल ऐसा टाइटल दे करके और उसने उस गार्डन की वहाँ पर शोभा बढ़ाई थी। द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट वॉज ऑफ वर्क्स वर इन देयर रॉ स्टेट एज रिगार्ड्स कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेज, एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम ए टिन टू ए सिंक टू ए ब्रोकन डाउन कार कुड बी मटीरियल फॉर ए वर्क ऑफ आर्ट। तो द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट, नोशन मीन्स फीलिंग होता है, कॉन्सेप्ट होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट वॉज ऑफ वर्क्स that the newly adopted scheme of the painting art brut or raw art was concerned to the works which were made by different kinds of things, whatever things the painters could find, जो कुछ भी उनको मिल सकता था, जैसे कि कोई जस्ते की कोई चीज़ मिल गई, कोई टिन टू ए सिंक
टू अ ब्रोकन डाउन कार कुड बी मटेरियल फॉर ए वर्क ऑफ आर्ट। उनको कैसी भी कोई टूटी फूटी कोई भी चीज़ मिल जाती थी, उस चीज़ का इस्तेमाल करके वो पेंटिंग बना देते थे। समथिंग नेकचंद हैज टेकन टू बीजिंग हाइट्स। इस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करके नेकचंद ने इस अपनी चित्रकारिता को बहुत ऊंचाई पर ले जाकर खड़ा किया है। रिकग्नाइजिंग इज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस ए सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम। तो कहता है कि इस प्रकार से नेकचंद के द्वारा बनाई गई इस पेंटिंग को अपना करके कोई भी एक व्यक्ति बगैर किसी से ट्रेनिंग लिए भी तो बहुत अच्छी अपनी पेंटिंग दिखा सकता है। द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम बाय वे ऑफ यूरोपियन एक्सपोजर ऑफ हिज वर्क्स। जब कभी एक यूरोपियन एक्सपोजर ऑफ पेंटिंग्स का जब कभी मेला लगा, एक्सपोजर या मेले के लिए होता है, फेयर के लिए होता है, प्रदर्शनी के लिए होता है, एग्जीबिशन के लिए, जब किसी यूरोपियन कंट्री में किसी एक इस प्रकार से पेंटिंग का वो लगा, कोई प्रदर्शनी लगी, तो यूनेस्को के द्वारा उस व्यक्ति को भी बड़ा सम्मानित किया गया, नेकचंद को। द 5 month इंटरेक्टिव शो रियलम ऑफ नेकचंद बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम इन स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली। ऐसा भी बाद में बताया गया कि भाई नेकचंद के द्वारा वास्तव में बनाए गए एक असली कार्य को और साकार रूप देने के लिए, और उन्होंने इस प्रकार से उसके अपने कार्य की शुरुआत जो है ना अक्टूबर के महीने से की। उन्होंने कहा द 5 month इंटरेक्टिव शो कि 5 महीने तक चलने वाला एक इंटरेक्टिव जो प्रदर्शनी है, रियलम ऑफ नेकचंद ये उस प्रदर्शनी का नाम था। बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम्स इन स्विट्जरलैंड। उन्होंने कहा कि वास्तव में इस प्रकार की जो प्रदर्शनी है वो स्विट्जरलैंड देश, बेल्जियम देश, फ्रांस और इटली, इन सभी देशों के जो लीडिंग म्यूजियम्स हैं, बहुत उच्च कोटि के संग्रहालय हैं, उन संग्रहालयों में उसकी अपने द्वारा हाथ से बनाई गई उन सभी कलाकृतियों को दिखाया जाएगा। द बिगेस्ट रिगार्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन, नेकचंद सेज। नेकचंद कहता है द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन। सबसे ज़्यादा बड़ा तो उसका अपना जो सम्मान है वो उसके अपने हाथ से बनाए गए उस बगीचे से उसको मिलता रहता है। एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन, और कहता है कि जब वो लोग वहाँ पर उस गार्डन में जाते हैं और देख करके मेरी रचना को, मेरे हाथ से बनाई गई उस पेंटिंग को देख करके जो उसकी तारीफ करते हैं तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। मेरा इससे बढ़ करके कोई बहुत बड़ा मेरे लिए सपना नहीं हो सकता, मेरे लिए कोई सम्मान नहीं हो सकता। इस प्रकार की बातें यहाँ पर कही गई है। हिंदुस्तान टाइम्स, ये ब्रेंडा सूरी के द्वारा हिंदुस्तान टाइम्स 28 अक्टूबर 2005, ये इन्होंने 2005 में जो इस प्रकार से ये रचना की गई थी गार्डन की, तो उस वक्त जो है ये इन्होंने इसका प्रकाशन किया था नेकचंद के द्वारा बनाए गए उस गार्डन का, और बहुत ही अच्छे से ढंग से हिंदुस्तान टाइम्स नामक समाचार पत्र में इस पूरे लेख को लिखा गया था। तो हालांकि इस पूरे पार्ट में बेटा हमने केवल 2 ही बातों को सीखना था, आर्ट ब्रुट क्या है एंड आउटसाइडर आर्ट क्या है। तो आर्ट ब्रुट और आउटसाइडर आर्ट का देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए मैंने इस पार्ट को पढ़ाना उचित समझा। और ध्यान रखना कि फ्रेंच पेंटर के बारे में ज़रूर जो भी कुछ बताया उसको जरूर आप ध्यान में रखें। चलो ठीक है बेटा, नाउ दिस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर हैज़ बीन रेड बाय अस। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर विल बी स्टार्टेड इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।